ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा, मैं आजाद पंछी हूं, मैं शेर की तरह लड़ूंगी। उन्होंने कहा, मैं राजभवन जाकर इस्तीफा बिल्कुल भी नहीं दूंगी। देर शाम ममता बनर्जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मैं हारी नहीं, मुझे हराया गया है। आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने क्या कहा। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. These atrocities is atrocious, terrible. I am grateful to all my India team's leaders. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong for the next days. Akhilesh requested me to come today itself, but I said you come better tomorrow. So he's coming tomorrow, and one by one everybody will come. And then I told you that my target is very clear. I will strengthen the India team just like a small person. And now I don't have any chair, so I am a commoner. So you cannot tell me that I am using your chair. I am now free bird. I gave full life for service to the people. Even these 15 years I have not withdrawn one paisa of pension or I have not taken one paisa of salary also. But now I am free bird. So I have to do some work. That I will manage to do it. And our party will see they started torturing all of our people. Even scheduled caste, scheduled tribe, they are not spared. জিততেই পারে, নির্বাচনে হার জিত আছে, কিন্তু সেটা তো নয়। আমরা তো হারিনি, জোর করে ফোর্সফুলি তুমি ক্যাপচার করেছো টোটালটা। যখন আমরা প্রায় 200টা সিটে এগিয়েছিলাম, একতরফা মিডিয়ার ক্যাম্পেনে পরে ওরা স্টার্ট করেছে টর্চারিং বাইরের লোক দিয়ে। অ্যান্ড সিআরপিএফ জাস্ট লাইক গুনস, every counting center, they didn't allow the press media, they didn't allow the CCTV footage, they didn't allow the candidate to go enter. How they misbehave, we don't have any respect for them. I'm sorry. The central forces can behave like this. I have never seen. I have seen Rajiv Ji's government, I have seen Manmohan Ji's government, I have seen Atal Ji's government, I have seen Vishwanath Pratap Ji's government, I have seen Devgura Ji's government, I have seen I.K. Gujral Ji's government, I have seen the others also, but I have never seen this type of atrocities. It is atrocious, terrible. There is no limit of atrocities. If it is going on, I think their image will be washed. It is already, they cannot show their face. It is not the proper way of democracy. Democracy, there is a courtesy. You have forgotten the courtesy, torturing the people. And what do you want? That only one party rule will rule the country. No opposition, nothing, nobody. So this I want to say to all of you on record. And parties, already we are solidly together. All the party leaders are working together. Though they are being tortured, they are being attacked, their house is being attacked, their
workers are being tortured. Already Beleghata, you have seen that died. They killed also. They are threatening to rape the women. Can you imagine a party who are ruling the central government? Can they do like this? Can they behave like this? Even I must say that when judiciary is not there, when election commission is biased, when government of India wants only one party rule, then how the people will get justice? It is the same for everyone. The wrong message is going to the world that you cannot fight democratically. All you are capturing forcefully. And narrative and negative, you have enough money. Betting management. So we will bounce back. We will fight it out. We only want to request you, don't show us, but please see that atrocities is stopped. It should be our request to all of you. Because you media is also, I know I don't blame the journalist, but they control the media. So reality bites that we don't say the truth. If you don't do that, don't tell the ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए और यहां तक कह दिया हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं थी बल्कि इलेक्शन कमीशन से थी। आज पूरे इंडिया अलायंस ने ममता बनर्जी के साथ खड़े होने का भरोसा दिया है और अखिलेश यादव जी ने तो फोन पर यहां तक कह दिया कि मैं अभी बंगाल पहुंच रहा हूं, लेकिन ममता बनर्जी ने कह दिया कि आप कल आना। अभिषेक बनर्जी ने तो तमाम आरोप लगाए काउंटिंग को लेकर, बड़े सवाल खड़े कर दिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर। उन्होंने यहां तक कहा टीएमसी के लोगों के साथ गलत तरह का व्यवहार किया गया। आइए देखते हैं। मेरा चैलेंज है सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको एसी, इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेंट का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया है दोनों अलग मशीन है, सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। 90% मशीन्स वेर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? सबका प्रोटेस्ट करने का हक होता है और किस तरीके से वो प्रोटेस्ट करेंगे वो उनका अधिकार है। अब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उनको क्या करना चाहिए वो तय करेंगे। उन्होंने ममता जी ने साफ बताया है कि जिस तरीके से चुनाव में लूट मचाया गया है, हम हारे नहीं है, मतलब जिस तरीके से लूट के हराया गया है। मैं आपको मतलब सुबह से मैं ऐसे 100 कैंडिडेट से बात कर चुका हूं जो मुझे कह रहे हैं कि 17C फॉर्म पहले भी कहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि ईवीएम जो ईवीएम में वोट होता है वो शायद ना मैनिपुलेट हो, लेकिन ईवीएम्स कैन बी रिप्लेस्ड। तो बहुत जगह से हमारे पास फीडबैक आया है और ये रिटर्निंग ऑफिसर को काउंटिंग वाले दिन पे जमा भी दिया गया है कि जिस ईवीएम पे वोट हुआ है जब उसको काउंटिंग टेबल पे मैच कर रहे हैं तो सीरियल नंबर 17C के साथ मैच ही नहीं कर रहे। ऐसे 10 ईवीएम कल्याणी से आया है, मेमरी से आया है और इनका सारा चिट्ठी जमा हुआ है। ऐसे 100 काउंटिंग सेंटर्स है, 100 एसीज है जहां पे आप अगर कोर्ट में जाओगे चैलेंज करोगे तो 2 बजे के बाद सारे काउंटिंग एजेंट्स को हटा दिया गया, मार के भगा दिया गया और वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस में रिकॉर्डेड है। आप मुझे बताइए 2 बजे तक जहां पे 90% 80% काउंटिंग कंप्लीट होना चाहिए, आप कल टाइम स्टैम्प देख लीजिए इलेक्शन कमीशन का, दोपहर को 2 बजे तक 2:30 बजे तक सिर्फ 4 राउंड काउंटिंग हुआ था और 20 राउंड बाकी है, कहीं 24 राउंड बाकी है, कहीं 25 राउंड बाकी है, कहीं 18 राउंड बाकी है। मतलब 10% 15% आपने काउंटिंग करके वो लीड दिखा दिया और माहौल ऐसा बना दिया मीडिया के सहायता से कि ये दिखाने के लिए कि बीजेपी जीत चुकी है। और जोर जबरदस्ती वहां पे कोई स्टेट का आदमी था नहीं। आप जिसको बिठाए काउंटिंग ऑब्जर्वर सेंटर का आदमी है, माइक्रो ऑब्जर्वर सेंटर का आदमी है, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ने बिठाया है, स्टेट के आदमी को हटा के अपने खास लोगों को बिठाया है। अच्छा, जो गार्ड कर रहे हैं दे आर पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो सारे सेंटर के लोग स्टेट का कोई है ही नहीं। मतलब पूर्व मेदिनीपुर में मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि रैंडमाइजेशन रूल शुड बी इंप्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, जहां पे स्टेट और सेंटर का
एम्प्लॉय दोनों होना चाहिए, वहां पे खाली सेंटर के एम्प्लॉइज थे। ऐसे कई काउंटिंग सेंटर्स है। तो जिस तरीके से लूट मचाया गया है, जोर जबरदस्ती, आपने पहले भाई तृणमूल और बीजेपी का वोट का फर्क क्या है? 32 लाख, 30 लाख को तो आपने पहले ही वोटर लिस्ट निकाल दिया, 7 लाख नए वोटर्स ऐड किए, 10-15 लाख आपने काउंटिंग में मैनिपुलेशन किए। अगर भाई जनता के राय के ऊपर आपको भरोसा है तो आप सबको रखिए काउंटिंग सेंटर में, सबको वोट करने का ताकत दीजिए। लेकिन पीएम, आपको दिक्कत क्या है? सर पीएम ने तो कहा ये बंगाल का जनादेश है, तो क्या ये बंगाल का जनादेश आप नहीं मान रहे हैं? नहीं, अगर जनादेश है तो भाई आपने देखा ना काउंटिंग सेंटर से तृणमूल के लोगों को भगाया गया मार के। वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज करे। भाई इलेक्शन कमीशन कुछ भी करता है तो आप लोगों को मीडिया में दे देता है रिएक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज कर दे। काउंटिंग सेंटर में नहीं हुआ है, हम मान लेंगे जनादेश है। मेरा चैलेंज है, सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको एसी, इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर दे। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज, खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा का रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेंट का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया है, दोनों अलग मशीन है, सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। मैं देता हूं आपको, चिट्ठी भेजता हूं मीडिया ग्रुप में अभी। और ये आज मैं नहीं दे रहा हूं, कल हमारे काउंटिंग एजेंसी आरओ को दिया है, जहां पे मान लीजिए वोटिंग मशीन्स जो पूरा दिन आप ये कैमरा यूज कर रहे हो, बूम यूज कर रहे हो, भाई इसको आपको चार्ज तो करना पड़ता है। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है, जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन्स वेर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? तो जनादेश है तो आप ये सार्वजनिक कर दीजिए, हम मान लेंगे जनादेश है। और जनादेश चाहे तृणमूल को 80 सीट मिले, 8 सीट मिले, 100 मिले, 150 मिले या 2 मिले, भाई हम वो सर झुका के लोग जो आदेश देंगे हम वो मानेंगे, और लोकतंत्र का यही खासियत है। लेकिन जिस तरीके से आपने माहौल बना के लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करके जोर जबरदस्ती, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी एनआईए से जिनको नोटिस दिया, और ऐसे भी लोग हैं जो काउंटिंग एजेंट्स थे कल, उनको भी नोटिस दिया ताकि वो काउंटिंग में नहीं जा पाए। खाली आप चुनाव आयोग को बोलो कि भाई मैं 100 नाम देता हूं, आप 12 से लेकर 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दो। सीसीटीवी तो था ही, मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा, आपके सामने आके माफी मांग लूंगा। तो ठीक है, इसमें पार्टी में चर्चा होगी और आने वाला दिन में जो भी होगा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हम लोग बनाए। जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जाके पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है, हर जगह पे आपने देखा है। कल रात भर हम लोगों के पार्टी वर्कर्स के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, मैं सबको यही कहूंगा कि तृणमूल के जितने भी सैनिक हैं, आप एकदम स्ट्रांग रहो, पार्टी आपके साथ डट के खड़ा है और जहां तक हमें जाना पड़े हम आपके लिए जाएंगे। और इसीलिए एक 12 मेंबर्स का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया गया है। 3 टीम अलग बनी है जिसमें 4-4 मेंबर्स रहेंगे और परसों से ये विजिट चालू होगा। कल आपको डिटेल ब्रीफिंग इसके ऊपर मिल जाएगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी सड़क पर इस बार उतरती हैं और एक बड़ा आंदोलन करती हैं, तो मैं इस बात को कह सकता हूं, इंडिया अलायंस यहां से बहुत मजबूत होगा। जिस तरह से 24 में इंडिया अलायंस मजबूत दिखा था, उससे कहीं ज्यादा इंडिया अलायंस पश्चिम बंगाल से बहुत मजबूती पाएगा। इंडिया अलायंस के पास 2 रास्ते हैं, या तो इंडिया अलायंस यहां से खत्म हो जाएगा या फिर इंडिया अलायंस यहां से बहुत मजबूत होकर उभरेगा।